Hello students, I'm teaching you Python and this is chapter number 3 of class 12th, working with functions. So it is very important to understand what is function. We begin here. So in this chapter, I'll tell you about functions, introduction to functions, understanding functions, defining function in Python, flow of execution in function call, passing parameters, returning values from the function, composition, scope variable, scope rule of the variable. So all these points we will cover in this lecture. So first one is introduction. Large programs are generally avoided because it is difficult to manage a single list of instructions. Thus, a large program is broken into small units known as function. तो यहाँ पर clearly बताया है कि what is a function? Function is a named block. I'm saying if there is a program and I'm writing suppose 100 lines in that program or 50 lines in that program, it is difficult to handle such a big program by the programmer, as well as computer need a lot of memory for this. If this program is divided into small parts, function 1, this part is divided into function 2, this part is divided into, so if many functions combined will make a program and many programs combined will make a software. In this way, it is easy to manage and handle the program or the software. So he'll clearly written a function is a sub program that act on data, often return a value. Okay, so this is important to understand that what is a function is and how to define it is more important. Understanding function. In order to understand what function is in terms of programming language, read the following line very carefully. You know, you must have done in mathematics that 2x square, it can be written as fx is equal to 2x square. Now, if value of x I am putting 1, say here I am putting 1, then it will be 2 into 1 square. This value will be 2. If I am putting the value of x as 2, then it will become 2 into 2 square. That is 8. In this way, f2. So, for different value of x, value of function is different. This is what it is shown here. Now, how this function, mathematically, the function which is showing you will remain same in Python also. But writing the function is different. Means method of writing is different, but concept of function in mathematics and concept of function in Python will remain same. Concept will remain same, only method is different how to write that function. A function can have arguments. A function can perform certain functionality. A function can return the result. Means if there is a function, we will pass some value. We will do some process and then we will return some result. In this way, we are giving some values to, we are giving some data to function. The function will do some process on that data. And finally, it will return the result also. So in this way, a function is a complete unit in itself. Let's continue. Here is the method of defining a function. DEF is a keyword. Every function will start from DEF keyword. This is the name of the function. ये आप खुद अपना decide कर सकते हो what name you want to give to your function. This is called parameter of the function. जो हम data provide कर रहे हैं function को, हम इस bracket में लिखेंगे. These are parentheses. In between the parentheses, ये parentheses start, data and then parentheses close. तो ऐसे करके हम इनको कुछ data provide करेंगे, function को कुछ data provide करेंगे. Function will do some process. And after the process, function ने जो भी result calculate किया, function can return that result.
ऑप्शनल है डाटा प्रोवाइड करना, ऑप्शनल है हमें रिजल्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ये उनका मीनिंग बताया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या चीज है। दिस इज आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? सी, नेम ऑफ द फंक्शन इज आइडेंटिफायर। डेफ इज a keyword, define is a keyword. In this way, parameters, return value, process, everything is explained in your book very clearly. ये diagrammatically ये सब कुछ explain किया हुआ है कि how this function will work. See, this is indentation. Function is starting from here. This is body part of the function. Then after this, these are main lines. Execution will start from here. एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट कर रही है। a इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर। a में कोई वैल्यू आएगी। सेकंड लाइन विल बी प्रिंट। प्रिंट में देखो हमने क्या किया है, कैलकुलेट समथिंग। कैलकुलेट समथिंग इज अ फंक्शन। तो जो a वैल्यू हमने पास की वो a वैल्यू यहां x में चली जाएगी। ठीक है, तो डिफाइन कैलकुलेट समथिंग, यहां पर हमने कैलकुलेट किया, कुछ रिटर्न किया। जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो हमारी रिटर्न वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी। तो इन दिस वे फंक्शन विल बी कॉल्ड बाय द मेन लाइन। यहां से कॉल हो रहा है, ठीक है, और जब कॉल होने के बाद वापस रिजल्ट आ रहा है तो प्रिंट हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस फ्रॉम हेयर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। आफ्टर सेकंड लाइन इट विल गो हेयर, दिस इज थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। आफ्टर फिफ्थ लाइन इट विल कम बैक टू द प्रिंट स्टेटमेंट। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो सिक्स्थ पोजीशन पर एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट करेगी। तो कितनी लाइनें हुई पूरे प्रोग्राम में? देर आर 5 लाइन, देर आर 6 लाइन्स इन द प्रोग्राम, बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट विल बी द सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट। लेट्स कंटिन्यू। कॉलिंग एंड इन्वोकिंग ए फंक्शन। तो अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि इसको हम कॉलिंग करते हैं। डायग्राम के थ्रू जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको कहते हैं हम कॉलिंग ए फंक्शन। सी अगेन इन योर बुक इट इज एक्सप्लेन्ड इन ए मोर डिटेल मैनर। तो कॉल कैसे किया है देखो, पासिंग लिटरल एज आर्गुमेंट। तो हम कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे 4 पास कर रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, पासिंग वेरिएबल एज आर्गुमेंट, तो हम कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। टेकिंग इनपुट एंड पासिंग द इनपुट आर्गुमेंट। अब किसी कोई वैल्यू हमने इनपुट ली, माई नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी वैल्यू। जो माई नंबर में इनपुट हुआ वही हमने पास कर दिया एज आर्गुमेंट। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। किसी फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल करते हैं तो पहले कॉल होता है, कॉल होने के बाद जो रिजल्ट आता है फिर वो प्रिंट होता है। ठीक है, और यूजिंग फंक्शन कॉल इनसाइड द एक्सप्रेशन। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जैसे हमने फंक्शन कॉल किया, ऐसे ही किसी एक्सप्रेशन के अंदर भी हम कॉल कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये पहले फंक्शन कॉल होगी। फंक्शन कॉल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा रिटर्न स्टेटमेंट में वो रिजल्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड वेरी क्लियरली एक्सप्लेन इन योर बुक। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन फंक्शन टाइप। अब कितने तरह के फंक्शन होते हैं ये बहुत जरूरी है समझना। देखो, वन इज बिल्ट इन फंक्शंस, सेकंड इज फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, थर्ड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं? देखो, दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो मतलब हमें इसके लिए कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी इंपोर्टेड होते हैं और जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल के लिए हमें पहले वो मॉड्यूल डिफाइन इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैथ मॉड्यूल है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, फिर हम साइन, कोस, स्क्वायर रूट इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होते। प्रोग्रामर मींस यू विल मेक द फंक्शन और फिर उसको लाइब्रेरी में भी आप ऐड कर सकते हो और यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप खुद भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब तक जो भी चीजें हमने की वो सब चीजें रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करने के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक देखो, वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि DEF, डिफाइन इज अ की वर्ड, यूजिंग दैट फंक्शन वी कैन डिफाइन। ठीक है ना, तो DEF, देन फंक्शन का नाम, वो आपकी मर्जी का है। आइडेंटिफायर आप खुद चूज कर सकते हो, तुम्हें रूल पता है कि आइडेंटिफायर चूज कैसे करते हैं। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट,
एक पैरामीटर देना है या दो देने हैं या ज़्यादा देने हैं, जितने मर्जी पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। हम चाहें कोई भी पैरामीटर नहीं देना तो ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज नो पैरामीटर। उसके बाद एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होनी जरूरी है फंक्शन के बॉडी पार्ट में। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो देयर। रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल। तुम कुछ रिटर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है। तो मिनिमम 1 स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, फंक्शन नेम इज रिक्वायर्ड एंड DEF कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। देखो ये एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। डिफाइन सम, तो सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफायर, DEF इज अ कीवर्ड एंड X एंड Y आर पैरामीटर्स। मतलब हम 2 वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे। S इज द वेरिएबल वेयर यू आर स्टोरिंग द रिजल्ट, वेयर यू आर असाइनिंग X प्लस Y। रिटर्न S, तो हमने S को रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न किसको करेंगे? जो इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको हम S रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम देखते हैं कि कॉल कैसे हो रहा है। सी ये हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कीवर्ड है, ये फंक्शन नेम है, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस बॉडी पार्ट ऑफ द फंक्शन और ये रिटर्न स्टेटमेंट है। इसी तरह से यहां पर कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रिटर्न स्टेटमेंट और पैरामीटर ऑप्शनल है, ठीक है। हेडर इज कंपल्सरी, तो पैरामीटर, फंक्शन, बॉडी पार्ट, ये सब आप पढ़ सकते हो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में। डिफाइन सम ऑफ 3 मल्टीपल्स, फंक्शन का नाम है। S इज इक्वल टू नंबर 1 n इंटू 1 n इंटू 2 n इंटू 3, रिटर्न S। ये एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को क्या किया है, यहां पर हम n रिसीव कर रहे हैं और n को उसके 3 मल्टीपल से रिटर्न करके सम करके रिटर्न कर रहे हैं। बोथ दीज फंक्शंस आर डूइंग द सेम, बट first one is returning the computed value using return statement, second result is printing the computed value here only। देखो रिटर्न करेंगे तो जो इसको कॉल करेगा उसको आंसर मिल जाएगा, लेकिन प्रिंट कर देंगे तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। पर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट रिजल्ट कैलकुलेट कर देते हैं जिसको हमें कहीं और भी यूज करना है, और कई बार हमें वो रिजल्ट सेव करके नहीं रखना, बस स्क्रीन पे प्रिंट कर देना, सेव करने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हम प्रिंट भी कर सकते हैं रिजल्ट को, और ये और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को आप पढ़ सकते हो। बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि व्हाट दीज फंक्शंस आर डूइंग। उससे पहले क्या था, जस्ट वेट, ये एग्जांपल हमने देख लिए। उस एग्जांपल के बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। स्ट्रक्चर क्या है, एक पूरे पाइथन प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, एंड आफ्टर दैट मेन प्रोग्राम जो होगा उसकी स्टेटमेंट्स होंगी। इन मेन प्रोग्राम्स के अंदर हम इन फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कॉल कर लेंगे, और जैसे ही हम कॉल करेंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट वापस हमारे पास आंसर सेंड करेंगी। तो इन दिस वे प्रोग्राम कंट्रोल विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और किसी भी स्टेटमेंट पर हम वापस फंक्शन की तरफ कंट्रोल ले जा सकते हैं अपना और वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट है कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन वो होता है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। देखो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जिसकी इंडेंटेशन 0 से स्टार्ट हो रही है, ये सारा मेन लाइन्स है। मेन लाइन्स के थ्रू ही हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो जो फंक्शन है उनका एक स्पेसिफिक नेम है। एवरी ब्लॉक ऑफ द फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक, मतलब उनका कोई नाम है, ठीक है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए फंक्शन कॉल। अभी मैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बता चुका हूं, तो देखते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो क्या है, whenever a function call statement is encountered, an execution frame for the called function is created and the program control is transferred to it within the function's execution frame. The statement in the function body are executed and with the return statement it is go back to the main program। तो मैंने आपको बताया कि एक डिफाइन किया हमने फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया हमने, उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स, और फिर उसके बाद ये मेन लाइन है।
जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो सपोज आफ्टर 2 लाइन्स आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, उसके बाद भी 2 लाइन है, तो फर्स्ट लाइन ये होगी, सेकंड ये होगी। थर्ड लाइन देखो ध्यान से, थर्ड लाइन में कंट्रोल कहां चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा डिफाइन के पास। फिर यहां से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा 4 5 6 7 8, 9th लाइन पे ये रिटर्न स्टेटमेंट होगी। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं भी है तो भी रिटर्न कंट्रोल वापस आ जाएगा थर्ड लाइन पर, और यहां से फिर इसके बाद क्या होगा, 10th लाइन 11th लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इस प्रोग्राम में कंट्रोल कैसे फंक्शन की तरफ जा रहा है और फिर वापस रिटर्न हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरी मच इन दिस बुक। फर्स्ट प्रोग्राम हम करके देखते हैं। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू ए फंक्शन। फंक्शन के थ्रू हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है। डिफाइन कैलकुलेट सम and 2 numbers we are accepting x and y, sum is equal to x plus y, return s। अब ये तो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, अभी एग्जीक्यूशन विल टेक प्लेस फ्रॉम हियर। नंबर 1 is equal to enter any number, second is number 2 is equal to enter second number, then number 3 is sum is equal to calculate number 1 number 2। number 1 किस में चला जाएगा, number 1 x में चला जाएगा, और number 2 कहां चला जाएगा, देखो ध्यान से, number 2 y में चला जाएगा। एंड दिस स्टेटमेंट विल टेक प्लेस s is equal to x plus y। अब मैं लाइन नंबर बता रहा हूं 3, दिस इज 4th लाइन, दिस इज 5th लाइन, दिस इज 6th लाइन। 6th लाइन में क्या होगा, रिटर्न सम। सम में क्या रिटर्न होगा, जो हमने 2 वैल्यूज भेजी थी उसका सम रिटर्न हो जाएगा, एंड दैट रिटर्न वैल्यू विल असाइन इन दिस सम वेरिएबल। आफ्टर दिस 7th लाइन इज प्रिंट सम ऑफ द 2 नंबर इज सम। In this way, this program execution will take place. You understood how this control will jump to the function and how it will come back. See, in the book it is very clearly explained कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम जंप हो रहा है और कैसे वो एग्जीक्यूशन हो रही है उनके लाइन बाय लाइन। तो ये सारा एक्सप्लेन किया है, डायग्राम बना बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ दिस इज ऑल्सो गिवन दैट फर्स्ट लाइन ऑफ मेन फंक्शन, सेकंड लाइन ऑफ मेन फंक्शन, थर्ड लाइन ऑफ मेन फंक्शन, then it is jumping to the sum calculate function, first line of calculate function, second line of calculate function, then coming back to the return statement, and then main function की जो third line थी, फिर fourth line थी। तो these are the step by step execution जो मैंने तुम्हें explain कर दी है, ठीक है। तो these are very important points, ये read कर सकते हो आप, जो मैंने ऊपर already explain कर दिए हैं। There is no problem in these points, you must have understood, but it is important to read it thoroughly। एक और प्रोग्राम देखते हैं, क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम add.py to add 2 numbers through a function। ठीक है, उसी प्रोग्राम को दोबारा करके दिखा दिया है इसने लाइन नंबर्स के साथ। तो लाइन नंबर तो मैंने आपको समझा दिए ऊपर, there is no problem। ये वो लाइन नंबर दे रखे हैं, मेरे नंबर और इनके नंबर अलग हो सकते हैं, बट कंसेप्ट विल रिमेन सेम। सो रीड दीज नंबर्स वेरी केयरफुली। Okay, concept will remain same, that line numbers are different, maybe line numbers are different, okay। So there is no problem, concept is same, that I have already explained you very carefully। See, arguments and parameters। Now I'm passing some values, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा मैं arguments, ठीक है, और जो मैं पास कर रहा हूं उसको कहूंगा पैरामीटर्स। इनडायरेक्टली मैं ये भी कह रहा हूं कि द वैल्यूज विच आर रिटन इन द फंक्शन डेफिनेशन, इसको मैं कहूंगा फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहूंगा मैं इसको, फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। और जहां से मैं उसको कॉल कर रहा हूं, कॉल करूंगा तो कुछ वैल्यू पास करूंगा। आई एम पासिंग दीज टू वैल्यूज, दीज टू 12 and y, these are called actual parameter, actual parameters, ठीक है। तो ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, यहां से वैल्यूज यहां असाइन हो जाएंगी, and then it will return some value and result will be received। So actual parameters are at the time of calling the function, formal parameters are at the time of receiving, definition of a function के टाइम पे होती हैं ये, ठीक है। तो all these are actual parameters। ये this is clearly written। Arguments, Python refers to the value being passed as argument, and parameters, values being received as parameter।
तो जो रिसीविंग एंड पे होती हैं वो क्या होती हैं, फॉर्मल होती हैं. एंड सेंडिंग, पासिंग, जब हम पास कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है. नेक्स्ट इज at the time of passing we can pass literals, we can pass variables, or we can pass expressions also. But at the time of receiving only variables हम pass करेंगे. At the time of passing हम तीनों कर सकते हैं. Okay. And at the time of receiving only this. अब ध्यान से देखो, रिसीविंग किसको मैं कह रहा हूं, रिसीविंग कह रहा हूं मैं फॉर्मल पैरामीटर्स को, और पासिंग किसको कह रहा हूं, पासिंग कह रहा हूं मैं एक्चुअल पैरामीटर. एक्चुअल पैरामीटर कैन बी लिटरल, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, बट फॉर्मल पैरामीटर विल बी ओनली वेरिएबल्स. ओके, तो यहां करके दिखाया देखो, p+1 is an expression but p is a variable, 3 is a literal, p is a variable, p+1 is expression, but at receiving end we are writing only a and b. ओके, दिस इज एन एरर. ये ऐसा नहीं कर सकते हम. ओके, तो बेसिक ऑफ फंक्शंस आर वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, और इसके बाद नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, एंड हाउ वी आर पासिंग द पैरामीटर्स, एंड हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स एंड डिफरेंट मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स, जो हम अगली क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.